So in an already polarizing political Pradesh, now the arguments have even gone bizarre to another level. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has used a jibe, Chillam GV, and it appears he has referred that to nobody else but Yogi Adityanath, because he's also referred to the BJP saffron-clad leaders. Now, importantly, how has he said it? He was addressing a rally in Ghazipur, and he said these Chillam GVs can never do good to the state of Uttar Pradesh. And this remark, as that has come, is controversial because it has also appears to have been aimed at seers and saints. Listen in now to why this has become such a big controversy in Uttar Pradesh. एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। Akhilesh Yadav lights the Chillamjeevi fire in political Pradesh. In his biggest attack on Yogi Adityanath, the Samajwadi Party chief says those smoking Chillam can never do any good for Uttar Pradesh. After Akhilesh Yadav's statement, Chillam has become a smoking hot flashpoint in the Uttar Pradesh dangle. Addressing a poll rally in Ghazipur, Akhilesh didn't mince words in his attack on the chief minister. कोरोना की बात तो सरकार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि माँ गंगा, जो पवित्र माँ गंगा है, जिसको हम सब माँ गंगा मानते हैं, उसमें कितनी लाशें बह गईं। कैसे शर्म से देखेंगे उसको? क्या शर्म नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को? क्या बात करते हुए नहीं उनको शर्म आएगी कि माँ गंगा से वादा किया था कि माँ गंगा साफ होंगी? आज मुझे बताओ, गोमती साफ हो गई? माँ गंगा के साथ साथ क्या यमुना साफ हो गई? वो बदहाल हमारी वजह से नहीं है, वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है धुआं उड़ाने में। The sadhus are livid, calling Akhilesh anti-Hindu and demanding an apology. जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। The remark has snowballed into a major controversy. The BJP has hit back at Akhilesh Yadav. ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है तो जो है वो गलतफहमी पैदा होती है, और गलतफहमी जो है वो सियासी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। वो भूल जाते हैं 2014 में इनको सफा करके बाहर भेज दिया, 2017 में इनको बाहर भेज दिया, सत्ता में थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बुआ भतीजे मिल गए, तभी जनता ने इनको खदेड़ दिया। तो यह मुगालते में है। Bhojpuri actor and politician Dinesh Lal Niraua, who contested against Akhilesh in 2019 polls from Azamgarh, slammed the former UP chief minister. अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं। Akhilesh's Chillamjeevi attack keeps the polarization pot boiling in political Pradesh, while other issues related to development get drowned in the rhetoric. Bureau Report, India Today. Well, this is absolutely bizarre, and I want to now initiate a discussion on that. Why was it said and how are the reactions coming in? We're now joined by Swami Jitendranand Saraswati. He's the General Secretary of the Akhil Bharatiya Sant Samiti. We'll also now be joined by a Samajwadi Party spokesperson and also already joined by the Uttar Pradesh BJP, and Rajesh Chaudhary is joining us from the BJP. But I want to start with you, Swami Ji. माफी क्यों मांगी है आपने? क्या आपको लगा ऐसा इसमें गलत था जिसके लिए आप सामने आकर माफी मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से? राजनीति करने वाले किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, हमें इन बातों पर कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन जब राजनीति में बेवजह से सनातन हिंदू धर्म हजारों वर्षों की हमारी परंपरा त्याग वैराग्य को खींच करके उसे कम्युनल बनाने की कोशिश की जाएगी और गाली के शब्दों में प्रयोग किया जाए, तो मैं पूछना, पीछे के दिनों
जिसमें हिंदुत्व की तुलना ISIS बोको हरम से करना, इसके बाद से उस सवाल को आगे बढ़ा के राशिद अलवी द्वारा साधु संतों को राक्षस का लेनी कहना। चिल्लम जीवी पे आपका क्यों गुस्सा है? चिल्लम जीवी पे आपका क्यों गुस्सा है? कड़ी में मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात के लिए है कि अखिलेश यादव ने कल जो शब्द प्रयोग किए वो बेहद निंदनीय, घटिया स्तर के, निचले स्तर के शब्द थे, जिसे सभ्य समाज में किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या समझते हैं? एक रंगा भगवा वस्त्र के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे? अरे एक रंगा तो कफन भी होता है। अखिलेश यादव को नहीं चाहिए क्या जीवन में? So let's take that question to समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन राजीव राय जी। सर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है राजीव राय जी। राजीव, ये किस तरह का रेफरेंस है चिल्लम जीवी? आप भारतीय जनता पार्टी को इतने सारे मुद्दों पे ले सकते थे, चाहे नौकरी हो, इन्फ्लेशन हो, मुद्दों की कमी नहीं थी, पर ये जो पर्सनल अटैक है, चिल्लम जीवी बोलना, वो कहां से आया, क्यों आया, अभी तक समझ नहीं आ रहा है। बोला गया है इस बात को साबित करता है कि वो अपने को वही समझना कि मेरे लिए बोला गया है, इस बात को साबित करता है कि वो अपने को वही समझ रहे हैं जो एक कॉमन सेंटेंस बोला गया है, तो उन्होंने मान लिया कि वो हैं, पहली बात। दूसरी बात, संतों का पूरा सम्मान करती है समाजवादी पार्टी और उसके लिए किसी से सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री और उनके तमाम प्रवक्ता जब चैनल पर बैठकर अब्बा, जिन्ना खान, मुल्ला, टोटी चोर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मीडिया की आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाता है। या समाज के उन लोगों को जो समाज के अपने को धरोहर समझते हैं, समाज को ध्वजवाहक समझते हैं, व्हाई दे आर साइलेंट ऑन दोस इश्यूज? सर डेफिनेटली नॉट साइलेंट सर। वो अब्बा, जिन्ना सब पर हमने सवाल उठाए की बात कही जी। समाजवादी पार्टी को उस लेवल पे क्यों आना था? ये मैं लेकिन चिल्लम जीवी कौन है? कौन है फिर? अगर आप कह रहे हैं ये संत नहीं है, योगी नहीं है, कौन है चिल्लम जीवी? भारत के बैरागी साधु समाज, जो लोग किसी भी तरह के नशे में रहते हैं और प्रदेश में नफरत फैलाते हैं, प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, राजेश जी वो कह रहे हैं कि ये आपने पर्सनल ले लिया, अटैक नहीं था भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे, कॉमन सेंटेंस था ये। देखिए, कॉमन सेंटेंस था तो अब इनकी बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये इनकी विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, और हमेशा भगवा से, साधु सन्यासियों से और संत महंतों से ये नफरत पहले से करते रहे, इनका इतिहास रहा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार अयोध्या के अंदर साधु संतों पर गोलियों की बौछार की थी, मारा था उनको, सरयू का पानी लाल हो गया था साधुओं के खून से, राम भक्तों को जिस तरह से मारा था, इनका ये इतिहास रहा है। और अखिलेश यादव उससे भी एक कदम जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है अखिलेश यादव इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे क्या? नहीं, ऐसे तरह के रेफरेंस नहीं दीजिए राजेश जी। स्वामी जितेंद्रनाथ ये कह रहे हैं कि संतों के खिलाफ नहीं बोला, राजनीति करनी है, ये बीजेपी के कुछ लोगों के बारे में बोला। क्या कहे स्वामी जी? इस्लामिक तुष्टीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, पर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे देश का हर हिंदू इनको देख रहा है। इस तरह से इनके अंदर मर्यादा बना के रखो। अच्छा राजेश जी जरा बोलने दीजिए, स्वामी जितेंद्रनाथ से बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी ठीक है, भारत जिन्ना को बात कह दूं, इनका आइडियल जिन्ना है, जिन्ना को जो खलनायक है इस देश का। सर बीजेपी ने भी कम पोलराइज नहीं किया ये चुनाव, तो ज्यादा ये ना कहें कि आप ही ने सारा जो है सफाई अभियान चलाया है। स्वामी जितेंद्रनाथ से सवाल, अच्छा उनको बात करनी थी ना सर, उन्होंने माफी मांगी है। स्वामी जितेंद्रनाथ जी बोलिए, कहिए आगे बढ़िए जी, कि ये आपके खिलाफ नहीं है सर, ये साधुओं के खिलाफ। राजनीति में वैचारिक आरोप प्रत्यारोप, जिन्ना, सावरकर, मानववाद, समाजवाद, गांधीवाद सब कुछ चलेगा। आप राजनीति करो, आपको मुबारक हो, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आपस में लड़ो भिड़ो,
लेकिन भारत के हजारों वर्षों की सांस्कृतिक परंपरा को राजनीति के चक्कर में गाली देने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आप चिलमजीवी शब्द का प्रयोग करेंगे, आप एक रंगा सीधे भगवा कपड़े पर अटैक करेंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारा इतना ही कहना है, आप मर्यादा आपस में चाहे जो करिए, लेकिन भारत के संतों को वक्त दीजिए। संत राजनीति में नहीं करना चाहते जी। लेकिन राजीव राय, यही आवाज, यही मुद्दा उठ जाता है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं कि वो पोलराइज कर रहे हैं चुनाव को। आप जब इस तरह के टर्म्स देते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जी हम इतना ही कहेंगे, आप अपनी मर्यादा, आप लगातार वो बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। उनको सुन लीजिए, फिर मुझे मौका दीजिए तो मैं बोलूंगा, टू द पॉइंट जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। वो संत हैं, फिर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे अपमान कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म उदारता का धर्म है। हिंदू धर्म की ठेकेदारी उन लोगों से नहीं चाहिए जो हिंदू धर्म को सिर्फ अपने सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण, और फिर आप बोलिए आप संत हैं, आप संत हैं। जिन्ना के बाजार पर जब आडवाणी माथा टेक रहे थे तो आपकी आंखें बंद हो गई थी। मान्यवर संत जी, जिन्ना के बाजार पर आडवाणी जब माथा टेक रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? जिन्ना के बाजार पर माफी मांगने गए थे आडवाणी, तो आप क्या कर रहे थे? बिरयानी खा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? संतों का राजीव राय जी, क्या बताइए, अब ये चिल्लमजीवी पे आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, क्या आपने कह दिया है एक गुट को, अब बोल दिया है कि हम इस तरह से, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल इसमें आप चढ़ के बोलेंगे कि देखिए इंसल्ट किया। उनको बुलवा रही नहीं, ऐसे बात नहीं होता है, ऐसे बात नहीं होता है। जो मान्यवर, जो महापुरुष, जो संत उधर बोल रहे हैं, पहले उनसे जवाब ले लीजिएगा कि जब जिन्ना के मजार पर आडवाणी माथा टेक रहे थे और माफी मांग रहे थे, तब इनका हिंदू धर्म बंद हो गया था। जब हिंदुस्तान के आजादी में लड़ने वालों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी वाले गोलियां चलवा रहे थे, जेल में डलवा रहे थे, तब इनका राष्ट्र प्रेम हिंदू पर। ठीक है, फाइनल सवाल राजीव जी, क्या ये चिल्लमजीवी का आप स्टैंड करते हैं? पार्टी अभी भी पार्टी मानती है कि यह जी रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जिन्ना की मजार से हमने चिलमजीवी मांगा कह रहा हूँ, चिलमजीवी संतों के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है। जो सही मायने में संत होते हैं, समाज के मार्गदर्शक होते हैं, उनका पूरी तरह से श्रद्धा के साथ हम सम्मान करते हैं। हमें उसे किसी व्यक्ति विशेष से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात किसी व्यक्ति विशेष को चुभ गई है तो मानते हैं कि वो है और उसके नशे में बर्बाद कर रहे हैं। हम पूरे संत समाज का प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। समाजवादी पार्टी says this was never aimed at one person. If that one person has taken offense to Chilamjeevi, which is loosely translated to smoking hash or ganja, so to say, but it now appears that it has become a terminology now for the upcoming polarizing political Pradesh. Jinnah, Nehru, Mughals, Alexander, all of them making into the ground. Only the real issues are yet to be mentioned by the Netas.